Hi everyone, how are you doing? I hope everybody is doing well. So, आदमी होता तो हार जाता, आदमी होता तो हार जाता, जनाब उम्मीदें लड़ रही है, लड़ाई अभी लंबी चलेगी। अगर यही एम से, यही एंथुजियाज्म से आपने डिसाइड किया है कि यस, रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है एंड आई वांट टू categorically pass this subject with flying colors like 60 plus 70 plus and 80 plus, then I must say congratulations, great choice, and I welcome you to this risk management chapter 1, part 1. For those who I'm meeting for the first time, who are watching me for the first time, my name is Saili Chandalia Kothari. I am happily, I would flaunt that, learn from the ranker in a way. I'm chartered accountant, double chartered accountant. I'm chartered accountant from Institute of Chartered Accountants of India, जो अपन ओपन कर रहे हैं, and I am chartered accountant from Institute of Chartered Accountants in England and Wales. So I have done BFP ACA from ICAEW. I've done my DISA, MCOM, CFA Lite. I've given my diploma in IFRS exams as well. Well, that is not more important. What is more important for all of us is like I was fortunate enough to work with some great investment bankings like, Credit Suisse, Deutsche Bank. I was part of some great MNCs as well. Prior to this, my 10, 15 years of corporate career, I was a practicing chartered accountant too. So I have seen both of the worlds, right? So conventional practicing world and this corporate world, ranging from investment banking to your MNC culture. And somewhere or other, I was associated with these risk related profiles because I've handled legal entity controllership, I was regulator reporting, I've done Basel management, I was part of financial planning and analysis, right? तो कहीं ना कहीं तो ये रिस्क रिलेटेड चीज़ें मेरे बहुत ही काम के प्रोफाइल के बहुत ही नज़दीक थे एंड देन दैट्स हाउ आई वुड लव टू टॉक about the standard practices, the practical approach, like because we've worked on it, right? I've particularly worked on this. So Basel management मतलब क्या, कैसे होता है Basel management, what do you mean by credit risk, what do you mean by liquidity risk, और वो कैसे शिफ्ट होता है Basel 2 से Basel 3 पे. तो ये जो सारे चेंजेस थे, आई हैव डन ऑल ऑफ दैट एंड इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट उठाया है. Not just because of the scoring, not just because of the, only 9 chapters I can easily cover, but it is extremely, for me it is extremely important because मेरे सारे जो प्रोफाइल थे वो रिस्क रिलेट, कहीं ना कहीं तो रिस्क अटैच थे और मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे वो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. So on that note, let's kick start, right? So chapter one, part one. Before we start, I would love to tell you stories. You like stories? I love stories. Okay, so I would love to tell you some Panchatantra story. Okay, let me quickly share my screen with you and let's see if it is visible. Yes, it is. All right. तो ये अपनी पंचतंत्रा की स्टोरी है. क्या स्टोरी है? द टेल ऑफ टू फिशेस एंड अ फ्रॉग. मॉरल ऑफ द स्टोरी पहले ही मत पढ़ लेना. It is given at the first hint of a danger, act quickly to save yourself. That is a moral, but which is all right. तो ऐसा एक अच्छा सा पॉन्ड रहता है, as you can see. तो ये अच्छा सा पॉन्ड है. ओके, तो ये पॉन्ड में एक सहस्त्र बुद्धि और शतबुद्धि, ये सहस्त्र बुद्धि और शतबुद्धि नाम के फिशेस है, और वो जो फ्रॉग दिख रहा है उसका नाम है एक बुद्धि. हाँ, तो दे वर फ्रेंड्स हैप्पीली एंजॉयिंग देयर लाइफ इन दैट पर्टिकुलर पॉन्ड. तो एक दिन क्या होता है, ये मिस्टर एक बुद्धि जो फ्रॉग है, उनको क्या होता है, दो फिशरमैन दे वर पासिंग बाय. ओके, and one of them said to the other one that, let's come here tomorrow, कितने सारे fishes है, ये pond ज़्यादा deep भी नहीं है ना, we can we can catch hold of so many fishes. So they agreed that they'll come next day morning. ये बात सुन लेता है आपके एक बुद्धि. जो वो frog है वो सुनता है and then he comes and he tells to these fishes. यस, सहस्त्र बुद्धि और शत बुद्धि को बोलता है कि दोस्तों, यह बहुत डेंजर है, कल ये फिशरमैन आ जाएंगे, हमें जल्द से जल्द ये पॉन्ड छोड़ के कहीं और वी नीड टू गो, राइट? तो फिशेस वेर थोड़े से रिलक्टेंट हैं, क्या इतने से बात, डोंट वरी, वी नो इनन्यूमरेबल टिप्स एंड टेक्निक्स एंड ट्रिकी वाटर मूवमेंट्स हमको आते हैं,
हम इजीली ऐसे छूट जाएंगे उसके नेट से, वो हमें कैच नहीं कर सकता। डोंट वरी, डोंट इवन थिंक ऑफ चेंजिंग दिस प्लेस, बिकॉज हम लोग यहाँ से बरसों से रह रहे हैं, और अपने क्या बोलते हैं, हम अपने दादा परदादा एंसेस्टर्स ये भी सब यहीं पे रहते हैं। तो मैं हम लोग तो कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज हमको लगता है कि इट इज जस्ट द mere talk of few passing fishermen. But Frog was not convinced. He said, "My dear friends, I only have one talent. That talent is I can foresee the danger, right? तो आप भले ही रुक जाओ, मेरे पास आपके जैसे इन्यूमरेबल टैलेंट्स नहीं है कि मैं वो जाली से निकल जाऊंगा या फिर नेट से मैं ये हो जाऊंगा। आई विल हैव टू लीव। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब वो जो एक बुद्धि है, एज यू कैन सी, वो उसके फैमिली को लेके टाटा बाय बाय आई मिस यू टाइप करके दूसरे इसमें चले जाते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिशरमैन आ जाते हैं, दे कास्ट देयर नेट्स ओवर ऑल ओवर द पॉन्ड, और क्या, एंड दे हैड अ बिग हॉल, दे कॉट सो मेनी फिशेस इंक्लूडिंग आपके सहस्त्र बुद्धि एंड शतबुद्धि को। अब Sahasrabudhi and Shatabuddhi tried hard to escape, but none of their tricks worked, right? So they were caught and they dragged, I mean, they were dragged by the fishermen. अब ये meanwhile जो अपना frog रहता है एक बुद्धि, वो already he found a well for his family's shelter, okay? And now being worried कि अरे अपने दोस्तों का क्या हुआ? So he came on the surface and to his disappointment उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त सहस्त्र बुद्धि एंड शतबुद्धि ये पकड़े गए, मतलब दे आर नो मोर नाउ। एंड देन ही टोल्ड हिज वाइफ कि मेरे फ्रेंड्स बड़े टैलेंटेड थे, उनके पास इन्यूमरेबल टिप्स एंड टेक्निक्स एंड बहुत वाटर के अलग अलग वो मूव करना जानते थे। मेरे पास ये टैलेंट नहीं था, मेरे पास एक ही टैलेंट था, वो टैलेंट था कि मैं डेंजर सेंस कर, मैंने वो देखा एंड आई चेंज्ड इट, मतलब आई परफॉर्म्ड इट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, एट द फर्स्ट हिंट ऑफ डेंजर एक्ट क्विकली टू सेव योरसेल्फ। यही रिस्क मैनेजमेंट है। क्या है रिस्क मैनेजमेंट? आपका भले ही कितना भी स्ट्रांग बिजनेस क्यों ना हो, आपका कितना भी स्ट्रांग होल्डिंग क्यों ना हो आपके बिजनेस पे, कितना भी फाइनेंशियली आपका स्ट्रांग हो, आपके ऑपरेशन स्ट्रांग है, आपका मार्केट का ये स्ट्रांग है, बट यू नेवर नो इफ यू आर नॉट रेडी, इफ यू कैन नॉट सेंस द डेंजर, देन probably you will end your business or maybe you will land up in big troubles, just the way सहस्त्र बुद्धि एंड शतबुद्धि did, right? तो वैसे हुआ कि मॉरल ऑफ द स्टोरी अपने हिसाब से क्या होता है कि हाउ मच रिस्क वी शुड टेक। ऐसा नहीं कि हर छोटी बात पे फिर हम डर जाएंगे, राइट? डरना इज डिफरेंट एंड बीइंग प्रिपेयर्ड इज डिफरेंट। वो लोग बोलते हैं ना, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट कम सिनारियोज। सो रिस्क मैनेजमेंट का मुझे लगता है कि कोर, लाइक द सोल ऑफ दिस risk management concept is you got to be ready as a risk manager or a management or a stakeholder or a business runner or as an employee or operations admin, जो भी है। तो ये है। अब मुझे बताइए क्या है रिस्क, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? क्या है रिस्क? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज रिस्क? एक्सक्यूज मी, टेल मी। Getting into arranged marriage is risky. Let me tell you, getting into love marriage is also risky, okay? So risk is everywhere. वो अपने व्हाट्सएप पे बड़ा अच्छा ये चल रहा था, चूज योर हार्ड। आपको अगर फिट रहना है तो भी वो डिफिकल्ट है, आपको अगर फैट ही रहना है तो भी वो डिफिकल्ट है। फिट रहना तो डिफिकल्ट कैसे, दैट यू हैव टू गेट अप अर्ली, फॉलो द जिम रेजिम, ट्रैक योर फूड हैबिट्स, एंड एक ऐसा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर आपने नहीं ये लिया, आपको है जैसे ही रहना है, तो फिर आपके हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना? तो वो बहुत अच्छा था, दैट चूज योर हार्ड, कि क्या आप क्या करना चाहते हो। डिफिकल्ट तो सभी है, मैगी बनाना भी डिफिकल्ट है, राइट? तो रिस्क इज एवरीवेयर। रिस्क मतलब चैलेंजेस, रिस्क मतलब अनसर्टनिटी, रिस्क मतलब अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, जिसका क्या वो हम देखेंगे चैप्टर 1 पार्ट 1 में।
मेरे प्रीवियस डिस्कशन अगर आपने देखे हैं तो उसमें मैंने पूरा रिस्क मैनेजमेंट का एक समरी लेक्चर बनाया है, राइट? तो वो समरी लेक्चर में मैंने बताया, आपको बताया कि फर्स्ट 5 लेक्चर प्लस ईआरएम इंटरकनेक्टेड है, देन सिक्स सेवन्थ एंड आपका नाइन्थ आर डिफरेंट। आपका एसएफएम के कॉन्सेप्ट, आपके लॉ के कॉन्सेप्ट, आपके एफआर के थोड़े मोड़े कॉन्सेप्ट, ये थोड़े से यहाँ पे इंटरलिंक्ड है। हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर जैसे मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया, इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग रिस्क, रिस्क एंड रिस्क, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ रिस्क। आपको ये पढ़ते वक्त ऐसा लग सकता है कि कुछ कुछ चीज़ों का आपको कनेक्शन नहीं मिल रहा। आई एग्री टू दिस, राइट? दिस हैज बिन, मतलब ये वी हैव पुट इट आर कंसर्न्स अक्रॉस आर स्टडी बोर्ड्स कि ऊपर का और नीचे का कोई कनेक्शन नहीं लग रहा। कभी कभी पढ़ते वक्त हम जब व्हेन वी रीड आवर मॉड्यूल, ऐसा होता है कि ऊपर कहीं भी कभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। And we have given this to the, I mean we brought this to the notice of the study board. It is still in the pipeline, और जब तक वो चेंज नहीं हो रहा है, it is what it is that we are going to learn, right? ये ऐसा क्यों है पता है आपको? क्योंकि रिस्क ये कॉन्सेप्ट इतनी बड़ी है ना, मतलब बहुत डायनामिक है, बहुत वाइडर टर्मिनोलॉजी है। अलग अलग एंगल से लोग उसको देखते हैं, उसको असेस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, उसके मेजरमेंट्स अलग है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज़्यादा डायनामिक होने की वजह से कुछ डेफिनेशन यहाँ से, कुछ वहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से, और सब ला के रख दिया उन्होंने। तो हम देखेंगे चैप्टर 1 में पॉल हॉपकिंसन का डेफिनेशन हम देखेंगे, अपने SA 315 का डेफिनेशन, हम ऑक्सफोर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी के इससे रिस्क का डेफिनेशन देखेंगे। देर आर कम से कम देर आर like 10-15 definitions from different sources that they have given it. So we got to be mindful कि जब भी रिस्क रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू आता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, प्रिडोमिनेंटली हमको देखना है फर्स्ट चैप्टर। ऐसा कभी कभी चैप्टर 3 में भी आएगा, चैप्टर 9 में भी उसका इंटरलिंक्ड रहेगा। मैं आपको वो बताऊंगी कि कहाँ कहाँ कैसे इंडेक्स बना है, राइट? तो इंडेक्स में हम देखते जाएंगे कि ये सेम कंसेप्ट और कौन से अलग चैप्टर में दिया गया है, राइट? तो चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। Let me quickly share my screen again with you. Excuse me. Right. So ये हमने देखा रिस्क, रिस्क की स्टोरी देख ली पंचतंत्रा की, राइट? अब टाइप्स ऑफ रिस्क मुझे आपसे पूछने हैं कि टाइप, हम ना भले ही उनके डेफिनेशन वाइज कुछ भी रहे, ओके? सो डेफिनेशन वाइज बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन दिए, बिजनेस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये रिस्क, वो रिस्क। फॉर लेमन्स लैंग्वेज, फॉर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, इफ फॉर आर concept building, there are only 3 types of risk: financial risk, market risk and operations risk. ओके, फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं? क्रेडिट रिस्क, आपका लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइस चेंजिंग, ट्रेजरी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, राइट? तो ये मैं सब आपको डिटेल विद केस स्टडीज सिखाऊंगी कि क्रेडिट रिस्क मतलब क्या। ये लेमन्स ब्रदर्स का क्रैश हो गया था 2008, जिसको अपन सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं, राइट? किंगफिशर का केस हो गया, आपका नीरव मोदी का केस हो गया, सुब्रतो राय का केस हो गया, जैसे सहारा ग्रुप, कोविड 19, क्योंकि बैंकिंग के एनपीए बहुत बढ़ गए, बैड बैंक कॉन्सेप्ट मतलब क्या। तो ये सब हम ऐसा हर चीज़ का केस स्टडी देखेंगे। दैट इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, लिक्विडिटी रिस्क कैसे होता है, जैसे पीएनबी स्कैम हुआ, येस बैंक का स्कैम हुआ। येस बैंक में क्या हुआ, एनपीए बहुत बढ़ते गया, बैड लोन बढ़ते गए, एंड दे लेंट मोर देन दे रिसीव्ड, दे बोरोड, and borrower started defaulting their this thing, and hence it collapsed, right? आपका ये पीएनबी का क्या, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉस्ट्रो अकाउंट्स और लेंडिंग लोन के एक्सेट्रा अकाउंट में कैसे चेंजेस हुए, ये तो हमने बहुत नज़दीक से देखा है, राइट? एंड सो आई हैव सच सो मेनी केस स्टडीज टू शेयर विथ यू, वन बाय वन हम देखेंगे। फिर है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क ना, आई आई फाइंड इट वेरी फनी, ओके? क्योंकि मार्केट मतलब जो शेयर बेच रहा है उसको लगता है आई एम द एक्सपर्ट, और एट द सेम टाइम जो खरीद रहा है उसको भी लगता है आई एम द एक्सपर्ट। तो ये मार्केट बड़ा फनी चीज़ है, सबको लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ। तो मार्केट में बहुत सारे फ्लक्चुएशन होते हैं, मार्केट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं,
कंप्लायंस इश्यूज आ सकते हैं, रेगुलेटरी इश्यूज आ सकते हैं, कंट्री रिलेटेड कौन से चेंजेस। अभी रिसेंट केस है अपना अफगानिस्तान और तालिबान के जो भी चीज़ें हुई थी, तो देखिए एक कंट्री हैजार्ड हो गया था, राइट, कितना। ठीक है, इमीडिएट इम्पैक्ट अपने इस पे नहीं, बट ग्लोबल मार्केट में तो इसके इम्पैक्ट आते हैं, राइट। तो कंट्री रिलेटेड अगर कोई चीज़ें आती है, सेफ्टी के होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग के होते हैं, राइट, ये हमने देखा और देखेंगे। ऑपरेशन रिस्क क्या है कि ऑपरेशंस मतलब क्या, प्रिडोमिनेंटली ऑपरेशंस मतलब योर स्ट्रेटजी, योर स्टाफ एंड योर टेक्नोलॉजी, ऑल थ्री थिंग्स टुगेदर मेक्स योर ऑपरेशंस, राइट। सो स्ट्रेटेजिक मतलब क्या, आपकी स्ट्रेटजी, हाँ, आपकी विजन मिशन ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटजी। स्टाफ मतलब आपकी एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट बेस, आपका एडमिन स्टाफ, आपका आईटी स्टाफ, स्टाफ एवरीथिंग, राइट, स्टाफ इंक्लूड्स एवरीवन। एंड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी मतलब क्या, आपकी आईटी, आपका क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम्स, आपके पासवर्ड्स, आपके लिंक, एवरीथिंग। तो ये सब मतलब ऑपरेशंस। स्ट्रैटेजिक, स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू योर ऑपरेशंस। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपको करना है, रेपुटेशन हैजार्ड हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द चैलेंजेस एज अ न्यू इन द मार्केट। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी अपने पास चैलेंज है, चैलेंज मतलब क्या है, रिस्क है, राइट। स्टाफ, की नोट आपका कोई स्टाफ है वो छोड़ के चला गया, किसी ने फ्रॉडुलेंट बिहेवियर किया, नॉलेज ट्रांसफर होते वक्त देर आर सो मेनी क्रैक्स, तो उसमें से सब वो नॉलेज ये हो जाता है। आईटी मतलब आईटी सपोर्ट नहीं रहा, आपका सिस्टम प्रॉब्लम हो गया, हैकिंग हो गया, बहुत सारा साइबर रिस्क की चीज़ें हो गई, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरे अगर 9 चैप्टर का जिस्ट है, ये इतने सारे रिस्क हम देखने वाले हैं वन बाय वन, और केस स्टडीज देखने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, मॉड्यूल पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। फाइन। So what are the learning outcomes from this chapter 1? We are going to learn about what do you mean by risk, मतलब concept of risk. There is a thin line between the risk and uncertainty. दो हम अपने common parlance में अपने को लगता है कि नहीं दोनों similar है, but दोनों similar नहीं है. There is a distinction, risk and uncertainty. So uncertainty के वजह से risk आ सकती है, तो we can see कि क्या difference है. Then there are classification of risk, not the way which I shown you just right now. Dynamic nature of risk and types of risk. So there is an illustrative list given in the end of this chapter. So to name the few, there are strategic operational risk, business risk, financial risk, information risk, and liquidity risk. So introduction and definition. What do you mean by risk? Risk is derived from the word Italian word risco, which means danger, which means riskier, which means to dare, right? The risk. What do you think is risk for business? कोई भी बिजनेस का रिस्क मतलब क्या है, आप बताइए। मैं बताती हूँ आपको, चलिए। कोई भी फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव एक्सक्यूज मी, कोई भी फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दैट इट वांट्स टू बिकम फास्टर, बेटर, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल एंड नाउ ग्लोबल एनवायरनमेंट के जो भी पॉलिसीज निकले हैं वो पॉलिसी से वो अडेयर करेंगे, ऐसा। तो किसी भी एक, मतलब आप कितने भी विजन मिशन स्टेटमेंट पढ़ ले, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट पढ़ ले, इनको यही करना है। सारे मार्केट मतलब सारे बिजनेस को यही करना है कि दे वांट टू बिकम फास्टर, बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स, more profitable than their competitors, or than what they used to perform, and nowadays sustainable, right। जो जैसे अपना ये पैंडमिक हो गया तो कितना ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, तो कुछ कुछ लोगों के पूरे बिजनेस बंद हो चुके हैं, कोई फिर भी सस्टेन कर रहे हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी ये है। And now there is new, not so new concept, but then very important for today's scenario, global environmental policy आ चुकी है। अभी recently COP26 happened, do you know that? मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप देखना। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मतलब क्या, यहाँ पे कुछ 197 ऑड कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स है। ये एक पेरिस एग्रीमेंट के चलते आपका जो कार्बन एमिशन है वो कार्बन एमिशन 1.5
डिग्रीज पे लेके आना है, 2 से 1.5 डिग्रीज पे लेके आना है। तो हर गवर्नमेंट, आई मीन हर कंट्री को उसका एक एम दिया है, उसका एक पाथवे दिया है कि हम ऐसा ऐसा करके सस्टेनेबिलिटी लेके आएंगे, राइट। तो ये एनवायरमेंटल पॉलिसी भी फॉलो करनी पड़ेगी अभी बिजनेस को। तो चलते हैं, मीनिंग ऑफ रिस्क देखते, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? ऐसे इवेंट जिसके इम्पैक्ट नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, राइट। इसका मतलब क्या, रिस्क कैन नॉट ऑलवेज बी नेगेटिव, रिस्क कैन बी पॉजिटिव। रिस्क मतलब क्या, दो चैलेंजेस कैन बी पॉजिटिव। कैसे? जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि आपका ये जो COP26 का ये है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, आई राइट इट हियर, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबिलिटी के चलते वो बहुत ज़्यादा उसको सस्टेनेबिलिटी का अभी हर कंट्री को एक मैंडेट आया है। TCFD करके एक रिपोर्ट आया है जो कि सारे सेक्टर ने वो रिपोर्टिंग करना है। मतलब क्या, अभी फॉर एग्जाम्पल आप है ना, एक व्हीकल मेकिंग आपकी कंपनी है, राइट। तो व्हीकल मेकिंग कंपनी होने के वजह से आप हमेशा से क्या करते आए हो, आप हमेशा से एक डीजल या फिर आपने पेट्रोल के मशीन्स बनाए, हम्म, और कभी कभी आपने हाइब्रिड मशीन्स बनाए। अब क्या हो रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पूरा पूरा टोटली इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे ये हो। तो आजकल देखिए आप, हम कितना सारा वो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, बड़े बड़े 4 व्हीलर कंपनीज आर गेटिंग इनटू दिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का दिस थिंग, राइट। तो हुआ क्या, ये मैंडेट आने की वजह से ये आपको चैलेंज आ गया। अब चैलेंज आ गया तो आपने क्या किया, री इंजीनियर किया, रीडिफाइन करने का सोचा, आपके जो आउट ऑफ बॉक्स आपने थिंकिंग शुरू कर दी कि यार हाँ ये प्रोसेस ऐसा है, बट देन can I challenge the status of my process? Can I have some improvement? Can I have some Kaizen and Six Sigma techniques to be utilized and process improvement कर लूँ या फिर कुछ improvement कर लूँ? तो ये improvement करने के लिए what triggered it? This conference of the parties like COP26. It was 26th meeting, which happened in the Glasgow, which the city name is Glasgow, and which is in the UK. एंड ये अक्टूबर नवंबर में ये पार्टी, आई मीन ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज वहाँ पे हुआ था, राइट। तो मैंडेट आ गया, तो हम क्या सोचने लगे कि यार नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज कर सकते, कैन वी शिफ्ट ऑन टू लेट्स से विंड मिल, कैन वी शिफ्ट टू द सोलार एनर्जी, राइट। तो ये क्या हुआ, चैलेंज है, क्योंकि आपको ये कम करना है, आपके कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं या फिर ज़्यादा करने हैं, जो भी है आपके वो जो डिग्रीज है आपको कम कराने हैं, राइट। तो मैं ये कैसे कम करा सकता हूँ, मैं, तो ये सोचना शुरू हो गया, है ना। तो रिस्क नीड नॉट ऑलवेज बी नेगेटिव। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, स्पेंड गवर्नेंस, नॉन कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स। तो ये आपको ट्रिगर हो गया, मतलब आपको वो इन डिसगाइज ऑफ नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आई, राइट। तो मीनिंग ऑफ रिस्क ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, आपके ICAI गाइडलाइन क्या बोल रहे हैं कि दो टाइप के सेक्टर हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर है तो उनका क्या एम है, उनका एम ये एक ही है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स प्राइस। और अगर नॉन प्रॉफिट NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज उनको देनी है, इजंट इट। तो ये ऑब्जेक्टिव के बीच में अगर कुछ चीज़ें आ रही है विच इम्पेड the business to achieve this objective, that means रिस्क है। तो बिजनेस रिस्क का मीनिंग यहाँ पे दिया है उन्होंने कि बिजनेस रिस्क मतलब क्या, थिंग्स विच इम्पेड, मतलब क्या कि अगर कोई अनसर्टनिटी, कोई ऐसे फैक्टर्स, कोई चैलेंजेस विच इम्पेड द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो आपके दे कांट अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो ये है। अब रिस्क मैनेज मतलब ठीक है, मुझे समझ आ गया कि जो चीज़ रिस्क अराइज करते, क्यों 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 रिस्क आती है ना, वाई रिस्क अराइजेस। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं,
डायनामिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस हो सकता है, एंड आउटकम ऑफ अनसर्टनिटीज ऑफ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी इसके लिए बिकॉज इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हमने ऊपर देखा ना कि रिस्क कैन बी नेगेटिव एंड रिस्क कैन बी पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब राइट। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये नेगेटिव भी है एंड पॉजिटिव भी है। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या? रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ सच इवेंट्स, मतलब अगर 10 बार होते हैं तो 2 ही बार होने चाहिए ऐसे इवेंट्स के जो रिस्की है, ऐसा। सो रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ सच इवेंट्स, अगर इनहेरेंट है एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, जैसे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स है, यू लिटरली डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर सच सच इवेंट्स और हैपनिंग और सर्कमस्टांसेस जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ सकता है, तो उसका डाउन साइज कीजिए, मतलब उसका इम्पैक्ट कम करने की कोशिश करिए। इसका मतलब है आपका रिस्क मैनेजमेंट। क्या बोल रही है कि रिड्यूस द लाइकलीहुड and downsize the impact, reduce the likelihood and downsize the impact, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीजंस ऑफ रिस्क क्या है? हम्म? वो फ्रॉग इन द वेल सिंड्रोम, मतलब फ्रॉग को क्या लगता है ना, देखो, द एब्सेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मीन्स frog in the well syndrome. Frog in the well is a Chinese idiom which means person who is a narrow or close-minded person. A frog living in the well believes that it is the only world. I mean, his pond is the only world and nothing beyond it exists, right? तो frog in the well syndrome आ जाएगा। ये आपके जो इंडेक्स है उसमें लिखा गया है, तो यू गॉट टू बी, आई मीन यू डोंट वरी अबाउट इट, कि आपको जैसे आएगा फ्रॉग इन द वेल सिंड्रोम तो आपको पता है कहाँ पे जाना है, 1.3 पेज नंबर पे जाना है, देन यू कैन फाइंड इट। ठीक है, अब रीजंस ऑफ रिस्क हम देख रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन से वजह से रीजन, कौन से वजह से ये रिस्क आती है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइमेट चेंजेस। ओके, जैसे मैंने आप अभी बताया कि क्लाइमेट चेंजेस मतलब COP26। ओके, फिर आता है आपका ग्लोबल इवेंट जैसे पैंडेमिक हो गया। इनोवेशन क्लासिक एग्जाम्पल है ये नोकिया का। क्या हुआ नोकिया का? उसने कुछ नहीं किया, इसके लिए नोकिया हो गया, राइट? हो, ओके, बैड जोक। बट वो जो भी टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए या जो भी चेंजेस हुए उसके साथ वो गया ही नहीं नोकिया। वन टाइम पे एक टाइम ऐसा था जहाँ पे नोकिया बहुत ज्यादा मतलब उसके मार्केट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो एक ऐसे वाइट बटन वाला ये आता था, फोन आता था, उसको क्या ट्यूबलाइट फोन बोलते थे, राइट? मैंने भी यूज किया था वो फोन। तो इतना इतना सा फोन रहता था वो। बहुत ज़्यादा वो कंपनी अच्छे से चल रही थी, बट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चली, और हमने देखा कि अभी नोकिया का क्या हो गया है, राइट? देन स्टार्टअप एंड डिस्ट्रप्शन। सो व्हाट्सएप इज अनदर क्लासिक एग्जांपल कि कैसे चैलेंजेस कैन टर्न इनटू योर अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो व्हाट्सएप जो टेक ओवर हो गया फेसबुक के साथ, एंड कितने मिलियंस में वो बेचा गया, ऑल दैट वी नो द स्टोरीज, राइट? रोबोटिक्स एंड एआई, अपनी एलेक्सा राइट? एक वो क्या नाम थी, so there is one robot. I forgot her name. आई फॉरगॉट हर नेम टोटली। तो वो रोबोट को तो आप नेशनल, सोफिया सोफिया राइट? सो वो रोबोट को आप नेशनल ये भी देने को तैयार थे, राइट? तो रोबोटिक्स एंड एआई, वो लोग बोल रहे हैं कि अरे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से आपके जॉब्स चले जाएंगे, जो मैन्युअली कर रहे हैं वो सब रिडंडेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब इतने जल्दी तो नहीं होगा, राइट? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन एआई कैन नॉट टेक ओवर जो आप एक्सपर्टीज है, आपके जो एक्सपीरियंस है, आप जो जजमेंट यूज करते हो, तो वो सारा चीज नहीं हो एआई टेक ओवर कर सकता। एआई क्या टेक ओवर कर सकता है? जो बहुत मैनुअल है, यहाँ से डेटा इनपुट होता है, वहां से डेटा आउटपुट होता है, तो ये जो मैन्युअली करने का काम है, जैसे हम लोग मैक्रोस लगाते हैं बड़े बड़े वर्कशीट्स पे, राइट? तो एआई आपका वो स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश जरूर कर सकता है, एक डेटाबेस क्रिएट कर सकता है आपके
बेसिक बेसिक क्वेरीज जो रहते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज, वो रीड करके वो उसका सिमुलेशन, मतलब उसका इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। तो एआई काम कर रहा है, बट नहीं ऐसा नहीं, बट इट इज़ अ चैलेंज, बट इट इज़ लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज, राइट? अदरवाइज आपको मैन्युअली कितना सारा डेटा पुट पंच इन करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन प्राइस वोलेटिलिटी, मार्केट, मार्केट में कुछ भी असर हो गया, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, तो मार्केट का जो भी प्राइस वोलेटिलिटी है वो चेंज होती है। जैसे प्राइस वोलेटिलिटी चेंज होती है, आपके फाइनेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे अग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स। ऐसे कुछ कुछ केसेस हुए थे कि जहाँ पे लोगों ने लिटरली दे कॉर्नर द मार्केट, ओके। हम ये सिल्वर थर्सडे करके एक केस देखेंगे कि जहाँ पे वो जो भी ब्रदर्स थे, मतलब वो जो भी बिजनेस टाइकून थे, उन्होंने क्या किया कि पूरा मार्केट को कॉर्नर कर दिया, इतने सारे पोजीशंस क्रिएट करके रख दिए सिल्वर के लिए। तो कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ वो सिल्वर थर्सडे के केस में हम देखेंगे, राइट? हर्षद मेहता के केस में भी वन फाइन टाइम उसने ऐसा ही मार्केट कॉर्नर करने का उन्होंने किया था, राइट? तो ये अग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो सकता है। देन रेगुलेटरी चेंजेस, बाजल 2 से बाजल 3 पे। अब बाजल 2 क्या है, बाजल 3 क्या है? अगर बाजल, ये इट इज नथिंग बट अ प्लेस नेम, हाँ, ये स्विट्जरलैंड में एक सिटी का नाम है। तो जैसे अपने डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्ड्स होते हैं, तो ऐसा ही बाजल अकॉर्ड है। जब इन द ईयर ऑफ 2008 लेमन्स ब्रदर क्रैश हुआ था, राइट? तो बाजल 2 था। इसका मतलब क्या, लिक्विडिटी रिलेटेड ये चीजें, मतलब क्या, आप पूरा के पूरा फंड ऑफलोड नहीं कर सकते ना मार्केट में, आपको कुछ तो लिक्विड रखना पड़ेगा। तो ये कौन गवर्न करेगा? ये गवर्न करेगा बाजिल मैनेजमेंट, ये गवर्न करता है आपका लिक्विडिटी कितना होना चाहिए आपके, मतलब देर आर 3 पिलर्स, राइट? तो वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आपका कैसा है, आपको कैसे मेंटेन करना है, आपके रिस्क वेटेड असेट कैसे है, ये जो भी कॉन्सेप्ट है, ये बाजिल आपका गवर्न करता है। तो जैसे ये 2008 का सब प्राइम जो भी आपका क्राइसिस हुआ, उसके बाद बाजल 2 से बाजल 3 हो गया, तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। ये मुझे इतना क्यों अच्छे से पता है, क्योंकि हमने बाजल 2 से बाजल 3 का लिटरली शिफ्ट था, मतलब यू अंडरस्टैंड दीज financial institutions, I mean investment banking, they are working into more than 158 countries. So there must be numerous systems है। तो ये सिस्टम में कैसे वो चेंजेस लाना, एंड कितने अच्छे से वो दे शुड जेल विथ ईच अदर, उनका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए ना, दो टू सिस्टम शुड मैरी विथ ईच अदर, कुछ तो, अदरवाइज डेटा आ रहा है कहीं पे लीक हो रहा है, एनरिच ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारा हमने इस पे काम किया था कि बाजल 2 से बाजल 3 पे जब शिफ्ट हो रहे थे, तो वो चेंजेस हमने देखे। तो रेगुलेटरी चेंजेस, ऐसे रेगुलेटरी चेंजेस आ सकते हैं। देन ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स ज्ञान ऑफ द डे में, यहाँ पे ऐसे बहुत सारा ज्ञान ऑफ द डे आई वुड कीप टेलिंग यू, राइट? सो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स क्या है? ऐसे इवेंट्स की जिनका आपके मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपके 9/11 अटैक हुआ, टेररिज्म हुआ, या फिर नेचुरल कैलामिटी हुआ, आपका सुनामी आ गया, पैंडमिक आ गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया। कैन यू रियली कंट्रोल देम? नहीं, यू कैन नॉट, राइट? तो की टेक अवेज क्या बोल रहे हैं कि ब्लैक स्वॉन्स आर extremely rare events and often with large negative consequences. So, black swan events cannot be predicted beforehand, but they may seem obvious in the hindsight. Reliance on a standard forecasting tools and investment models can both fail to predict and potentially increase the vulnerability to black swans by propagating risk and offering false security. समझ में आ गया कि पहले वर्ल्ड वॉर 1 में लोगों को लगा था कि यार क्या कोई बात नहीं, अब भी आ जाएंगे, बट इट टुक देम 4 years टू रैप अप, हाँ, टू कॉल इट रैप, हाँ, बस अभी लास्ट ट्रूप वापस आ गया, तो इट टुक देम 4 years। तो ये सारे ब्लैक स्वान इवेंट्स है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक स्वान इवेंट्स। इट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ रिस्क। देन देर इज अ टेररिस्ट अटैक जो हमने देख लिया, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 का मैंने जैसे बोला कि लेमन्स ब्रदर क्रैश हो गया, तब हम वी वर मिडल ऑफ आवर करियर, राइट? तो हमने देखा है कि कितने ले ऑफ हुए, एंड आई वाज इन वर्किंग इन न्यूयॉर्क, सो मैंने बहुत नज़दीक से ये 2008 का लेमन्स ब्रदर क्रैश होने के बाद क्या क्या हुआ है वो देखा था, राइट? टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहाँ पे ये मैनहट्टन में ट्विन टावर उड़ाया गया था, राइट? तो ये ट्विन टावर के बिल्कुल 2 एवेन्यूज छोड़ के हम रहते थे। तो हमें पता
है कि उसके बाद आप बताइए एक बार भी यूएस के ऊपर ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए क्या, मतलब इतने बड़े इस पे, राइट? तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये हुए वो ट्विन टावर उड़ाने के बाद। तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे ग्रीस का हुआ। ग्रीस का क्या हुआ पता है आपको, कि ग्रीस ना टोटली बैंकरप्ट हो गई। मतलब क्या, जैसे अपन अपने कॉमन पार्लेंस में बोलते हैं कि अगर आरबीआई डूब गया तो मतलब इकोनॉमी, अपनी इंडियन इकोनॉमी डूब गई, राइट? तो वैसे ही ग्रीस का हुआ था। उसको आई मीन वो कंट्री को उसके गोल्ड रिजर्व्स बाहर निकालने पड़े टू सस्टेन। तो ये क्या होता है वो हम देखेंगे। मैं ये सारे जो भी है ना, ये सारे केस स्टडीज, एक एक केस स्टडीज आपके साथ इमीडिएटली डिस्कस करने वाली हूँ। और रियल टाइम केस स्टडीज जो मैंने खुद ने काम किए हैं, हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच जिसमें आया है, वो भी केस स्टडीज रहेंगे। तो आप देखो, ये 3 पेजेस का ये सिर्फ इतना सा जिस्ट है। तो नेक्स्ट टाइम मतलब अब हम एग्जाम में कैसे पढ़ेंगे, हमें इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये जो चार्ट्स है वो सिंपली आपने फटाक से देखना है और आपने लिखना है। यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड व्हाट इट मींस। तो इसका सारा एक सिनॉप्सिस, एक समरी हमने ये 4 पेजेस का एक पेज में करके रख दिया। समझे? तो ऐसा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। ऑल राइट। तो ये है आपका रीजंस ऑफ रिस्क। अब आउटकम ऑफ रिस्क क्या है? पहले हमने देखा कि रिस्क मतलब क्या, कि रिस्क आर सच सर्कमस्टेंसेस और अनसर्टेनिटी और ऐसे इवेंट्स कि जो इम्पेयर करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जो उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करते नहीं आता है, नहीं करते आ रहे, राइट? और रीजंस ऑफ रिस्क हमने देखा कि इंटरनल है, एक्सटर्नल है। जैसे हमने देखा यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, डायनामिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, राइट? तो अपॉर्चुनिटी में हमने क्या क्या देखा है, रोबोटिक्स देखा है, रोबोटिक्स एंड एआई हमने देखा। हमने ये भी देखा कि जैसे एलेक्सा स्टार्टअप एंड स्टार्टअप अगर अलग अलग होते तो वो कैसे इनोवेशन में कैसा डिस्टरप्ट हो गया, राइट? तो ये वजह है रिस्क की। अब रिस्क का आउटकम क्या है? रिस्क का आउटकम है गेनिंग और लूजिंग ऑफ व्हाट, गेनिंग एंड लूजिंग tangible value on what and on whom। तो क्या बोल रही है? गेनिंग एंड लूजिंग, गेनिंग एंड लूजिंग tangible value। ओके, क्या tangible value? on what? on your health, social status, आपके एम्प्लॉय के इमोशंस पे एंड फाइनेंस पे एंड गुडविल पे। ओके, तो आपका गुडविल, गुडविल आपका गुडविल के टैंजिबल वैल्यू पे आपका ये हो जाएगा। आपके फिनेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके कंपनी के सेंटिमेंट्स या फिर जो एम्प्लॉय के सेंटिमेंट्स है या इमोशनल अटैचमेंट है या सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, उस पे इशू हो सकता है। आपका सोशल स्टेटस, मतलब जो एक रहता है ना कि अच्छा टाटा का सोशल स्टेटस कितना अच्छा है, राइट? तो उस पे हेल्थ ऑफ योर कंपनी, हेल्थ एज इन health of your company, meaning the finance health of your company plus your employee ka health, right? And on whom? On your employees, on your customers, on your strategy, on your objectives and on your profit। समझे? तो आउटकम ऑफ रिस्क क्या है? गेनिंग और लूजिंग। गेनिंग क्यों? क्योंकि रिस्क कैन नॉट ऑलवेज बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। मतलब अपॉर्चुनिटी भी हो गया, अपॉर्चुनिटी मतलब गेनिंग भी हो गया। गेनिंग और लूजिंग द टेंजिबल वैल्यू ऑन व्हाट, ऑन हुम। हाँ, ऑन व्हाट? हेल्थ, सोशल स्टेटस, इमोशनल, फाइनेंस, गुडविल एंड ऑन हुम? एम्प्लॉयज, आपके कस्टमर्स, आपका स्ट्रेटेजी, आपका ऑब्जेक्टिव एंड आपका प्रॉफिट। तो रिस्क मैनेजमेंट हमने यहाँ पे देखा कि रिड्यूस द लाइकलीहुड। हमने देखा ना यहाँ पे कि ये इवेंट कम से कम आ जाए, वैसे देखिए। एंड डाउनसाइज द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब कौन सा? ये गेनिंग एंड लूजिंग द टेंजिबल वैल्यू ऑन होम एंड ऑन व्हाट। ऐसा कनेक्ट करना सीखिए। तो आपको आपको पता चलेगा। आपको ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गई तो आप बड़े अच्छे से लिख पाओगे ये, ठीक है? तो गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ टेंजिबल वैल्यू मतलब ये डाउन साइज करना है आपको इम्पैक्ट ऑन होम एंड ऑन व्हाट। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, 6 का। अगर मैं बोलती हूँ कि आप यहाँ, यू स्टैंड हियर, सॉरी, आई विल आस्क यू टू स्टैंड हियर एंड आई स्टैंड हियर, राइट? और मैं आपको पूछूंगी यहाँ खड़े रह के आपको ये क्या दिख रहा है? यू विल से इट इज नंबर 9। मैं यहाँ खड़ी रह रही हूँ तो मेरे को दिख रहा है नंबर 6।
किसी को यहाँ पे खड़ा कर दिया तो बोलेगा यार ये कॉमा है, किसी को यहाँ खड़ा कर दिया तो बोलेगा ये देवनागरी, लाइक मराठी स्क्रिप्ट में इट इज 7, 7 इज रिटन लाइक दिस, राइट? तो ये 7 है, मतलब क्या हो गया है, ये परसेप्शन है, राइट? From my perspective it is 6, from your perspective it is 9, from somebody else's perspective it is a comma or a balloon or a 7 or something else, right? तो रिस्क के भी परसेप्शंस हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क के परसेप्शन, मतलब क्या, कि रिस्क के परसेप्शन मतलब आपको किसी कोई कोई लोगों को लगेगा कि यार ये बिल्कुल रिस्की नहीं है, या किसी को लग सकता है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, राइट? अब उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि एक फिशरमैन है, ये एकदम टाइड में जा रहा है तो वो रिस्की है, बट उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा कि ऐसा फिशरमैन रेनी सीजन में वहां पे चला गया। किड्स खेल रहे हैं अकेले अकेले, वो रिस्की है। किड्स होम अलोन है और वो विंडो या बालकनी में अकेले खेल रहे, तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, इजंट इट? न्यू प्रोडक्ट है, लॉन्च करना है और उसका कोई मार्केट रिस्पॉन्स ही नहीं मिला आपको, तो क्या हो गया, रिस्की हो गया। तो पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो रिस्क के पर्सपेक्टिव अलग अलग होना मतलब क्या, अलग अलग बिलीव्स होना। कौन से बिलीव्स? अबाउट द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, the impact of the event, effect on of that particular event, मतलब रिस्क का, एंड टाइम मतलब कितनी बार उसका occur कब हो सकता है, राइट? तो ये सब बिलीव्स है हमारे कि नहीं ये अभी नहीं आएगा, या फिर इसका इम्पैक्ट इतना ही रहेगा, अगर इसका इफेक्ट इतने ही लोगों पे जाएगा, ये इतना ही टाइम पीरियड के लिए रहेगा, राइट? ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना मतलब आपका रिस्क परसेप्शंस के बिलीफ अलग अलग बिलीव्स है, ये तो अलग अलग बिलीव में रहते हैं। तो ये ऑकरेंस, आपका इम्पैक्ट, इफेक्ट, ये टाइम, ये बारे में अगर आपके कोई ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उसको बोलते हैं रिस्क परसेप्शन। तो ये रिस्क परसेप्शन भी मैनेज करना पड़ेगा। तो दैट्स दैट। अब रिस्क परसेप्शन जैसे मैंने बताया कि हमने फर्स्ट 5 चैप्टर्स एंड आपका ERM 8 चैप्टर इंटरलिंक्ड है, तो उसमें ना ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स में एक चैप्टर में ऐसा है कि रिस्क एटीट्यूड एंड रिस्क कल्चर, ये इसके बारे में किया है, तो अभी इंटरलिंक करिए। तो रिस्क परसेप्शन एंड हाउ इट इज connected with your risk attitude and risk culture. फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट 2 बिलियन का बैलेंस शीट ऑफ क्रेडिट स्विस कंसोलिडेटेड, ओके फाइन। अब आप कोई इंटर कंपनी का एक्सक्यूज मी, अब इंटर कंपनी के टीम में हो, अब कंसोलिडेट हो रहा है ना, क्रेडिट स्विस एजी का कंसोलिडेशन चल रहा है, बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आप क्या करोगे, ये जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है उसको साइड में करोगे, राइट? अब साइड में करते करते आपको समझ में आ गया कि देयर इज अ लीगल एंटिटी ए, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल जो ब्रोकर डीलर पर्पस के लिए होती है, टैक्सेशन पर्पस के लिए होती है, या फिर पेरेंट नोड, पेरेंट चाइल्ड नोड के लिए रहती है, हाँ। तो डिफरेंट रीजंस के लिए ये लीगल एंटिटीज, मतलब छोटी छोटी एंटिटीज बनाई हुई रहती। तो वो एक एंटिटी, एंटिटी ए बोल रहा है कि एंटिटी बी से उसको 1000K का अभी भी आना दिख रहा है, मतलब इट इज इवन आई मीन एंटिटी बी still needs to pay entity A 1000K dollars, let's suppose dollars, $1000 हमारा लेना बाकी दिखा रहा है, ऐसा बोल रहा है, देना बाकी दिखा रहा है, ऐसा ए बोल रहा है कि हमको हम बी से लेना है, और बी बोल रहा है कि नहीं हमने वो ऑलरेडी दे दिया। ए बोल रहा है हमको वो रिसीव ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बैच अपग्रेड होते रहते हैं, अपडेट होते रहता है। तो अगर वो बैच रन में आपका पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या आपका पर्टिकुलर जर्नल एंट्री अगर नहीं गया, तो वो रुक जाता है और बैच रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, राइट? मतलब डिपेंड्स क्या प्रोसेस है, लेट्स नॉट गेट इनटू द प्रोसेस, बट समझिए कि ए बोल रहा है कि अभी तक आया ही नहीं। विल यू ब्रेक योर हेड फॉर दैट 1000 डॉलर्स के लिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 बिलियन का बैलेंस शीट, राइट? तो वो मटेरियलिटी कंसेप्ट होती है, इजंट इट? तो रिस्क कल्चर क्या बोलता है कि यार 1000 का डिफरेंस है ना, विच इज ओके, डोंट ब्रेक योर हेड्स कि नहीं 1000 कहाँ चले गए, मेरा रिकंसिलेशन बैठ नहीं रहा है, नहीं बैठ रहा है तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मंथ में बैच रन हो जाएगी तो वो ये हो जाएगा, अभी के लिए ओवर द टॉप एडजस्टमेंट डाल दीजिए और अगले महीने में वो रिवर्स कर लीजिए। तो ये कौन बोलता है कि 1000K का आई मीन 1000 डॉलर का डिफरेंस इज कोई बात नहीं, इट इज इमटेरियल।
तो ये जो डिसाइड करता है ना, इसको बोलते हैं रिस्क एटीट्यूड ऑफ दैट कंपनी। और रिस्क एटीट्यूड आपके रिस्क परसेप्शन से बहुत हैंड इन हैंड चलते हैं। आपको लगता है हजार के कुछ भी नहीं, $1000 कुछ भी नहीं है। अब वही अगर चीज आप कोई मिड साइज कंपनी के लिए ले रहे हो, कोई आपका फीस दिखा रहा है, राइट? अगर आप कोई आपका फॉरेन क्लाइंट और आप फीस दिखा रहे हो और सोचिए आपको $1000, तो आप बोलेंगे यार ये तो मतलब बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, $1000 का रिकन्सिलेशन नहीं बैठ रहा है। तो आपके लिए वो रिस्क परसेप्शन अलग है, राइट? तो ऑकरेंस, इम्पैक्ट, इफेक्ट, टाइम, ये सारे डिफरेंस हो सकते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क परसेप्शन। यही रिस्क परसेप्शन आपका रिस्क कल्चर एंड एटीट्यूड डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SA 315 ऑफ ICAI, SA 315 ऑफ ICAI क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। ओके जी, ये देखिए, ये मैंने बताया कि एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, सैटेलाइट की प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज है। द एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशनशिप विद वैल्यू एंड द रिस्क आउटकम्स। ये एग्जांपल दिया है कि फिशरमैन एक्सपीडिशन पे गया एंड लॉस ऑफ हिज लाइफ हो सकता है। होम अलोन इन्फेंट है क्लाइंबिंग ऑन अ विंडो पेन। कॉर्पोरेट लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट प्लेस विदाउट मार्केट रिसर्च। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिस्कियर प्रपोजिशंस बताती है हमें। ऑल राइट। अब SA 315 of ICAI defines the term significant risk. What do you mean by significant risk in the context of auditing? Okay, तो significant risk ये है an identified and assessed risk of material misstatement that in the auditor's judgment requires special audit consideration. हम्म, तो ये देखिए, आप मैंने जब बताया था कि आपका ऑडिट में भी ये रिस्क मैनेजमेंट का काम आ सकता है, हैंड इन हैंड चलता है। तो SA 315 बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट, कि SA 315 बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट ये है कि इट आइडेंटिफाइड मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऐसा है कि जिसके वजह से ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट रिमार्क्स देने पड़ेंगे। ओके, तो ये क्या क्या चीजें हैं कि ये ऐसे इवेंट्स जो प्रिवेंट करते हैं, हिंडर करते हैं, या फेल टू फर्दर, मतलब जो प्रोग्रेस होता है ये नहीं करने देते, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इम्पेड। कहाँ देखा हमने वर्ड, एकदम स्टार्टिंग में देखा कि विच इम्पेड्स एनी बिजनेस, राइट? सॉरी, इम्पेड। इम्पेड का मतलब उन्होंने यहाँ पे नीचे बड़े अच्छे वर्ड्स में दिया है कि इम्पेड मतलब प्रिवेंट, हिंडर, फेल टू फर्दर एंड ऑब्स्ट्रक्ट द एंटरप्राइज विच इज इम्पेड। यहाँ पे दिया है, देखिए। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, ERM, जो चैप्टर 8 है। तो आपको अगर चैप्टर मतलब फर्स्ट में नहीं मिला तो आपको देखना है ये चैप्टर 8 में रहेगा। वैसे ही हमने अपनी इंडेक्स बना के रखी, राइट? हम्म, अब देखिए, जैसे मैंने ये फ्रॉग इन द वेल सिंड्रोम आपको बोला, ये 1.3 पे दिया गया है। बिजनेस डिक्शनरी के डिफरेंट ये देखे गए। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी ऑफ रिस्क परसेप्शन। रिस्क परसेप्शन मतलब अपन ने देखा ये 6 या 9, ये फिशरमैन का हमने केस देखा, है ना? फिशरमैन, राइट? तो ये ऐसा आपके पास इंडेक्स्ड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, हाँ मैं ये बता रही थी कि इट इज इंटरलिंक्ड। शायद मैंने लिखा रहेगा इसमें कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, शायद अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे भी कैन ऐड कि ये 8th पे भी आपका ERM, सॉरी, आपके 8th चैप्टर में भी ये आ जाएगा, 8th चैप्टर। ठीक है, हम्म, आगे बढ़ते हैं। आउटकम्स देख लिए हमने। अब SA 315 डिफाइंस बिजनेस रिस्क। क्या डिफाइन करता है SA 315? A risk resulting from significant conditions, events, circumstances, actions or inactions
that could adversely affect an entity's ability to achieve its objectives and execute its strategies, or from setting of inappropriate objectives and strategies. तो ऐसे 315 बोल रहा है आपको कि ये सारे आपके जो रिस्क है, सिग्निफिकेंट कंडीशंस, इवेंट्स, सर्कमस्टेंसेस, एक्शंस, इन एक्शंस जो आपको ऑब्जेक्टिव्स यूटिल करने नहीं दे रहे, तो वो क्या बोल रहे हैं, कंडीशंस इवेंट्स, सॉरी, कंडीशंस इवेंट्स, एक्शंस एंड इन एक्शंस, प्रिवेंट, हिंडर, फेल टू फर्दर। क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे हमने देखे फास्टर, बेटर, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जिस्ट है जो हम अभी तक के देखते आए हैं कि ऐसे 315 क्या बोलते हैं कि ऐसे कंडीशंस, ऐसे इवेंट्स, ऐसे एक्शंस, ऐसे इनएक्शंस ऑफ विच, मतलब क्या, विच प्रिवेंट, हिंडर एंड फेल टू फर्दर प्रोग्रेस या फर्दर ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हमें ट्रबल दे रहे थे, फ्रॉम क्या बोलते हैं, इम्पेड कर रहे हैं फ्रॉम अचीविंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, फास्टर, बेटर, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट चेंजेस। इस पे एमसीक्यू आने वाले। तो आप यहाँ पे देखिए कितने सारे उसने उन्होंने एग्जाम्पल दे के रखे हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ रिस्क, आईटी रिस्क एंड ऑडिट रिस्क, आईएसओ गाइडलाइन क्या बोल रही है, आईआरएम क्या बोल रहा है, इंटरनल ऑडिटर क्या बोल रहा है, पॉल हॉपकिंस क्या बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एसए 315 क्या बोल रहा है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स क्या बोल रहे हैं, सीमा क्या बोल रहा है, SCIMM क्या बोल रहा है, बाजिल 2 ये गवर्निंग बॉडी क्या बोल रहे हैं, 315 वापस आ गया, कोबिट एंड इसाका वापस आ गया कि कोबिट मतलब वापस नहीं, कोबिट मतलब क्या हम देखेंगे, एंड इसाका मतलब क्या हम वो भी देखेंगे। ICI रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट गाइड क्या बोलना चाह रहा है। तो कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजी हमें पता नहीं है हम देखेंगे। आईफैक क्या है, आईफैक ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है अकाउंटेंट के लिए। अपना ICAI इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आईफैक। तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट मतलब आपका सीमा है। तो ज्ञान ऑफ द डे क्या बोल रहा है कि सीए इज द मेंबर ऑफ आईफैक, कापा एंड साफा। आईफैक क्या बोल रहा है, इट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट, आईफैक इज द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकाउंटेंसी प्रोफेशन। वो क्या क्या करते हैं, इट इज डेडिकेटेड टू सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट and developing high quality standards and guidelines. It is a global organization for the accountancy professional comprising 180 members and associate organization in 135 countries and jurisdiction. Okay. कोबिट क्या बोल रहा है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, COBIT, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका उसको बोलते हैं, राइट। So it allows practitioners to govern and manage IT holistically, incorporating all end-to-end business and IT functional areas, right? फिर OHSAS, OHSAS का एक क्लासिक एग्जांपल क्या था पता है आपको? ये जो आपका भोपाल की गैस लीकेज का मिसहैप हुआ था, तो इट इज गवर्न बाय OHSAS, मतलब क्या, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे नीचे दिया है देखिए, occupational health and safety management, occupational OHSMS is this, and OSSAS is occupational health and safety assessment series। ठीक है, तो ये अलग अलग सीरीज है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये पढ़ लेना, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अकॉर्डिंग टू OHSAS कौन सा रिस्क का कौन से हिसाब से गवर्न होता है, तो वो यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है आपका कोसो, नहीं, सिक्स दिस आईफैक, आईफैक का हमने पढ़ा कि कापा के हम मेंबर है, कापा मतलब क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटेंट्स and South Asian Federation of Accountants like SAFA, CAPA and SAFA. So ICAI is a member of CAPA and SAFA and IFAC. Okay. अब कोसो क्या है, कोसो मतलब कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये किस चीज के लिए फ्रेमवर्क है, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ डिजाइनिंग, implementing, evaluating internal control for organization, providing enterprise risk management। मतलब वापस आ गया आपका ERM का चैप्टर 8, ये इंटरलिंक्ड है।
It was published for the Internal Control Integrated Framework for ICIF, and it is widely used in United States. फिर कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोसो, उसका मिशन क्या है? इट्स मिशन इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस by developing thought leadership that enhances internal control, risk management, governance and fraud deterrence. समझा? तो दैट इज ज्ञान ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ यू. यहाँ पे दिया तो है कि कापा, साफा, कॉबिट, ये मतलब पता तो चले कि कॉबिट मतलब क्या, कापा मतलब क्या, साफा मतलब क्या, बाजल टू मतलब क्या. जैसे मैंने बताया कि बाजल टू ये गवर्निंग बॉडी है, इसको एकॉर्ड्स बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज एकॉर्ड्स, बाजल एकॉर्ड्स बोलते हैं. सो बाजल टू, बाजल टू से अब बाजल 3 हो गया है. तो आपके कुछ परसेंटेज आपको रिस्क वेटेड एसेट, इट इज कॉल्ड एज RWA, रिस्क वेटेड एसेट के आपको सर्टन परसेंटेज आपको साइड में रखने पड़ते हैं. उसको बोलते हैं आपको लिक्विडिटी, राइट? तो ये रिस्क वेटेड एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सब देखेंगे चैप्टर 6-7 के इसमें कि क्या करते हैं, राइट? तो रिस्क वेटेड एसेट मतलब फॉर एग्जांपल इक्विटी इज 100% रिस्क वेटेड, कैश इज नॉट, तो वैसा. तो ये आपको MCQ के लिए पढ़ना ही पढ़ना है. यू गॉट माई पॉइंट? चलिए, अब फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या? फाइनेंशियल रिस्क मतलब आपकी कैश या फिर आपका फाइनेंस, इट इज नॉट एडिक्वेट टू मीट योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. ऊपर हमने कौन से देखा? बिजनेस रिस्क देखा. अब हम क्या देख रहे हैं? फाइनेंशियल रिस्क देख रहे हैं. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे इतना सारा रिस्क रिस्क दिया है ना, तो वी टेंड टू गेट कंफ्यूज कि हमें पूछा किस बारे में. आर दे टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिस्क, आर दे टॉकिंग अबाउट बिजनेस रिस्क? थोड़ा सा पढ़ लेना. ओके, तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या? ऐसे इवेंट्स और ऐसे कोई ऑकरेंस हो गए कि जिसके वजह से आपका कैश जो है वो इनएडिक्वेट है टू मीट योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आपका ROI लेस है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेसर, या फिर आपका प्रिंसिपल जितना आपने डाला था अमाउंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट ही आपका कवर नहीं हो रहा है, राइट? तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क. यहाँ पे दिया गया है नास्डैक. कौन डिफाइन कर रहा है? नास्डैक डिफाइंस फाइनेंशियल रिस्क एज risk that the cash flow of an insurer will not be adequate to meet its financial obligation, also referred to as additional risk that firm's stockholders bears when the firm uses debt and equity. देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फाइनेंशियल नास्डैक, उप्स सॉरी, नास्डैक के डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. ठीक है, तो ऐसे आप 1.7 यहाँ पे देखिए 1.7 पे दिया गया है. समझे? तो नास्डैक बोलता है कि फाइनेंशियल रिस्क की आपकी कैश फ्लो ऑफ एन इंश्योरर विल नॉट बी एडिक्वेट टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. जेनेरिक टर्म में फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या? इट इज द पॉसिबिलिटी दैट return on investment will be different from historical and expected return, and also takes into account of magnitude of difference. This includes the possibility of losing some or all the original investment. तो ये बोलता है कि फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या. आगे उन्होंने दिया है कि US ट्रेजरी बॉन्ड इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट. ये देखिए, वन ऑफ द, सो इन कंपैरिजन टू एन इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेटिव ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर आपके US ट्रेजरी यील्ड, और तो ये मतलब ये बाकी के रीजन से कि ये बॉन्ड मतलब जैसे अपनी RBI अगर डूब गई तो मतलब सब डूब गया, तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि US ट्रेजरी बॉन्ड इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट. तो ये बता रहा है the reason for this is that the corporation is more likely to default on a debt than the US government, because the risk of investing in a corporate bond is higher. Investors are offered a correspondingly higher rate of return. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ फाइनेंस रिस्क, क्या बात हो रही है यहाँ पे? टाइप्स ऑफ फाइनेंस रिस्क की बात हो रही है. ऊपर हमने क्या देखा? रीजंस देखे. काहे के रीजन देखे हमने? कहा गए रीजंस अपने? रीजंस ऑफ रिस्क. देखिए, ये है आपके बिजनेस, आपके रीजंस ऑफ रिस्क.
ये रहे आपके रीजंस ऑफ रिस्क. Business scenario, climate changes, these, that, especially practitioner regime, startup, volatility, price, heavy, create stress, complexity, black swan events, climate changes, corporate failures, agenda of governments, regulation, terrorist attack, extreme weather events, and global financial crisis. The, extreme risk that are being faced by society, commerce, and business. These extreme risks exist in addition to daily and somewhat mundane risk. तो ये रीजंस ऑफ रिस्क हो गए. और हम यहाँ हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल रिस्क के टाइप्स. ओके, व्हाट वी आर लुकिंग एट, हाँ वी आर लुकिंग एट फाइनेंशियल रिस्क का टाइप्स. सेम. मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंफॉर्मेशन या टाइमिंग रिस्क, सोर्स रिस्क, मॉडल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड लीगल रिस्क. ये सब हम डील करेंगे रियल टाइम. ये आपके रियल टाइम हुए, मतलब देर आर रियल टाइम केसेस अवेलेबल फॉर दिस फाइनेंशियल रिस्क. फिर वही दिया है उन्होंने, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजरी सर्विसेज, OHSAs. तो यूनियन कार्बाइड का केस हुआ था भोपाल में, सैप. फिर ईरा मतलब एनवायरमेंटल अफेक्ट कितना हो रहा है एनवायरमेंट के, उसके प्रेडिक्शन करने वाला ईरा रहता है. जैसे COP26 का मैंने बताया कि 1.5 डिग्री सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे दिया गया, उन्होंने दिया ईरा इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग वेदर देयर मे बी अ रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट caused by the chemical substance. तो ये ईरा का ये चीज 1.2 में दिया गया है. अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि कॉर्पोरेट रिस्क. इलस्ट्रेटिव ऑफ कॉर्पोरेट रिस्क, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सॉरी, तो अभी तक हम क्या क्या देखे, हमने देखा बिजनेस रिस्क, हमने देखा फाइनेंस रिस्क, फाइनेंस, ओके, और हम देख रहे हैं अभी कॉर्पोरेट रिस्क. ठीक है. अब कॉर्पोरेट रिस्क में वो क्या बोल रहे पता है क्या आपको? आपके कॉर्पोरेट फंक्शंस दिए गए हैं और आपके रिस्क एरियाज दिए गए हैं. क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कोई भी एक कॉर्पोरेट के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? फंक्शंस हो सकते हैं आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ट्रेजरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ट्रेजरी वन मोर टाइम दिया है, एंड फाइनेंस एंड अकाउंट. तो ये फंक्शंस में मतलब डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट्स में क्या क्या रिस्क आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल एच आर में पुअर मोरल एंड टैलेंट रिटेंशन कैन बी द रिस्क एरिया. सेल्स एंड मार्केटिंग में पुअर कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन हो सकता है. ऑपरेशंस में अलग अलग ऑटोमेट करते वक्त अलग हो गया. ऑपरेशंस मतलब हमने देखा कि नॉट ओनली ऑपरेशंस मतलब स्ट्रैटेजी भी होता है, आपका स्टाफ भी आता है, और आपका IT रिलेटेड भी आता है, राइट? तो ये ट्रेजरी मतलब लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैकिंग हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोडक्ट फेलियर हो गया, ट्रेजरी हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो गया, राइट? तो ये हम मोर इसकी हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे. इसमें मैंने टॉप 50 बिजनेस रिस्क लेके आई हूँ आपके लिए, राइट? तो ये हम देखेंगे. बट सबसे पहले हम थोड़े से केस स्टडीज देखेंगे. यहाँ तक के आपको समझा कि क्या करना चाह रहे. रिस्क का मतलब दिया है उन्होंने. ओके ओके, नाउ पे अटेंशन टू मी. what they are trying to deal here with is like they have given the different scenarios of risk, मतलब different definition of risk. तो हम ना रियल टाइम केस स्टडीज देखेंगे वो रिस्क रिलेटेड. हम देखेंगे बिजनेस रिस्क मतलब क्या, फाइनेंस रिस्क मतलब क्या, कॉर्पोरेट रिस्क के मैं 50+ आपको बिजनेस रिस्क बताने वाली हूँ. कैसे, चलो देख लेते हैं. पहले वो देख लेते हैं. um, 50+ मॉड्यूल में दिया होगा शायद. यस, टॉप 50. अब टॉप 50 बिजनेस रिस्क एंड एक्शंस, ये है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट. क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? बिजनेस रिस्क डिस्क्रिप्शन, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये आपका सोल्यूशन स्टेटमेंट है.
हमें ना एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और आपको उसका सोल्यूशन देना है। अभी हमने देखा कि कॉर्पोरेट रिस्क क्या है। कॉर्पोरेट रिस्क मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके जो भी डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट रिस्क। उसका आगे का एक स्टेप इज योर सॉल्यूशन स्टेटमेंट। ओके, तो प्रॉब्लम किस चीज में आया? असेट रिस्क, मतलब असेट रिस्क टू बिल्डिंग्स असेट्स, फॉर एग्जांपल फायर एंड फ्लड। ये फंक्शन कौन सा हो सकता है? आपका फाइनेंस हो सकता है, या फिर आपका ये फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, एडमिन, या फिर सॉरी, बहुत ही, हाँ, दिख रहा है, या तो एफ ए फंक्शंस आपका हो सकता है। तो अगर आपके असेट्स के लिए कुछ थ्रेट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्क है। व्हाट आर द एक्शंस दैट कुड बी टेकन टू मैनेज दैट रिस्क? तो आप, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है आपके आंसर्स के लिए। क्या बोल रहे हैं कि आप एज अ रिस्क मैनेजर आप एडवाइस करोगे कि यार आपके असेट्स को इंश्योरेंस कर दो, या फिर आपके फायर एंड बिल्डिंग के कंप्लायंसेस है, ये आप बोल सकते हो कि मॉक ड्रिल ले लिया करो, है ना? दैट्स अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी, राइट? कि हमें एक महीने के बाद एक फायर ड्रिल ले लो, एक मॉक ड्रिल ले लो। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब स्मोक अलार्म, स्प्रिंकलर्स लगा दो। तो ये हुआ आपका सोल्यूशन स्टेटमेंट, और ये हुआ आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ विच डिपार्टमेंट, फंक्शंस और डिपार्टमेंट कैन बी योर एफए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो ऐसे मैंने आपको ये 50 ये दे के रखे हैं। अब बैड डेट्स। बैड डेट्स अगर हो गया, तो बैड डेट्स कहाँ पे आ सकता है? बैड डेट्स आ सकता है आपके सेल्स एंड मार्केटिंग में, राइट? या फिर आपके एफए में, या फिर आपके लिक्विडिटीज में, तो ये, या फिर आपके ट्रेजरी केस में। तो ये कौन से डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम हो गया? प्रिडोमिनेंटली आपके ट्रेजरी, या फिर आपके सेल्स में ये प्रॉब्लम हो गया, राइट? प्रॉब्लम ये हुआ कि बैड डेट हो गया, तो क्या उसका सोल्यूशन है कि आप क्रेडिट चेक्स रखिए। मतलब एक आप एजिंग सिस्टम लगाइए। एजिंग सिस्टम, एजिंग सिस्टम मतलब क्या? 30 डेज, 30 डेज से पुराना है, 90 डेज से पुराना है, या मोर देन 120 डेज से पुराना है वो पर्टिकुलर बैड डेब्ट। तो क्यों अभी तक उसको राइट ऑफ नहीं किया गया? या फिर क्यों उसका, अगर अक्रूअल लेके बैठे हैं आप, तो अक्रूअल आप उसके रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये सारा एजिंग सिस्टम आप बैठा सकते हो, हम इसको बोलते हैं आपके क्रेडिट चेक। सेट क्रेडिट लिमिट्स। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर वेंडर हमेशा, या फिर जो आपका क्लाइंट है, वो हमेशा डिफॉल्ट करता है या फिर लेट पेमेंट करता है, then what you have to do in those cases that you have to set a certain limit to them कि ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए तक का ही सप्लाई करूंगा, उससे आगे नहीं करूंगा। सेट अ पेमेंट टर्म्स फॉर सप्लायर्स। पेमेंट टर्म्स फॉर सप्लायर्स मतलब क्या? आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, आपको 80% अभी एडवांस में पे करना होगा, एंड 20% यू कैन पे टू मी इन द ट्रांचेस या समथिंग लाइक दैट। देन यूज डेट कलेक्शन एजेंसी। हाँ, मतलब वो कलेक्शन एजेंसी नहीं रहती क्या, वो हम यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी? बैड डेब्ट्स। कहाँ प्रॉब्लम आई? ये आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट या फिर आपके सेल्स डिपार्टमेंट में। तो ये प्रॉब्लम है कि बैड डेट हो गया, तो क्या करेंगे? तो ये सॉल्यूशंस आप पहले से एज अ रिस्क मैनेजर, आप पहले से ही ये सॉल्यूशंस उनको दे सकते हो। ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे ये दिस थिंग यू विल गेट इट। अभी जैसे बैंकरप्ट हो गया कोई भी, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू योर बैड डेट। कोई बैंकरप्ट हो गया, तो क्या करना चाहिए आपको? उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रांग करना चाहिए कि ये क्या है, इसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, इसके रेटिंग क्या है, राइट? तो ये बैंकरप्सी ऑफ सप्लायर्स एंड क्लाइंट, ये हमें देखना पड़ेगा। फिर ब्रांड फटिंग। ब्रांड फटिंग मतलब क्या? जैसे ना एक ही चीज देख देख के, मतलब इतना ज्यादा ये हो जाता है ना कि वी डोंट बाय इट। ओके, तो ओवर यूज हो गया। तो यूज एनालिटिक्स टू मेजर द एंगेजमेंट, प्रोवाइड पर्सनलाइज यूजफुल इंसाइट, लेस मे बी मोर, क्रिएट क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग कंटेंट। उसके बाद कैश फ्लो में अगर प्रॉब्लम हो गया, तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम मतलब आपका अगेन ट्रेजरी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मतलब क्या कर सकते हैं आप? कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट एंड इन्वेंट्री देख सकते हैं। फिर है आपके कंपटीशन एंड अग्रेसिव मार्केटिंग।
बेटर इंटेलिजेंस, या फिर आपका लीगल एक्शंस। लीगल एक्शंस मतलब क्या हो गया, आपके कंप्लायंसेस, मतलब लीगल लीगल टीम के साथ हो गया, है ना, लीगल टीम के साथ प्रॉब्लम हो गया। रेगुलेशन मतलब वही कंप्लायंसेस के साथ आपका प्रॉब्लम हो गया। कॉपीराइट का थेफ्ट हो गया, या कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब आपका प्रोडक्शन हैम्पर हो गया, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैम्पर हो गया, राइट। क्योंकि आपका प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लो है तो आपका मार्केटिंग प्लस सेल्स प्रॉब्लम में आ रहा है। डेटा सिक्योरिटी मतलब आपका आईटी डिपार्टमेंट डिफिकल्ट टू सेल प्रोडक्ट, ये ऑपरेशंस प्लस मार्केटिंग प्लस सेल्स डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है। तो आप क्या क्या करोगे, कंसिडर फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस रादर देन द प्रोडक्ट। रिव्यू ले लीजिए, राइट कस्टमर को अप्रोच हो रहे क्या वो देखेंगे। रीपर्पस द प्रोडक्ट, डीकमीशन द प्रोडक्ट, अगर नहीं चल रहा है तो उसको डीकमीशन कर लीजिए। एनवायरमेंटल नेचुरल बिजनेस, जैसे मैंने ये आपको बोला कि COP26 का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये अभी आपको एक TCFD करके आपको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये ऐसे मैंने 50 चीज़ें आपको दे रखी है कि डिपार्टमेंट एंड उसका ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये है आपका सोल्यूशन स्टेटमेंट। ओके, फेलियर ऑफ यूटिलिटीज मतलब वाटर नहीं है, ये नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गया। हेल्थ एंड सेफ्टी जो अपन ने देखा OHSAS, उसमें प्रॉब्लम हो गया। लॉस ऑफ की स्किल्स मतलब आपका HR रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। तो हम ना चार चीजों में बांट सकते हैं कि मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मनी। तो ये कौन से चीजों में प्रॉब्लम हो गया, मैन हो गया तो आपका HR, मटेरियल एंड मशीन हो गया तो आपका मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपका प्रोडक्शन, एंड मनी हो गया तो आपका ट्रेजरी। फाइन। तो ये ऐसे 20 अलग अलग ऑपरेशंस उसके 20 ऑपरेशंस और उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड उसके सोल्यूशन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिए हैं। डोंट वरी, दिस विल गेट सर्कुलेटेड, आपको ये मिल जाएगा। इसका मैं PDF दे दूंगी। जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको दे देंगे। अभी जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस मैगी का केस हुआ, ये अपन देखने वाले, ये सारे केस अभी अभी इमीडिएट हम देखने वाले हैं। तो दैट्स दैट। ठीक है। सो टॉप 50 बिजनेस रिस्क, ये हमने क्या देखा, डिपार्टमेंट, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड एज अ रिस्क मैनेजर उसका सॉल्यूशन स्टेटमेंट। ये आपके पास 50 ऐसे चीजें हैं। रीड एवरी डे। क्यों रीड करना है एवरी डे? क्योंकि आपका एक्यूमेन बढ़ता जाएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ तो ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम हुआ तो वो हो सकता है, ये प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन है। तो ये आपका लिखने का तौर तरीका, आपके एक्शंस बहुत डिफाइन कर देंगे। मतलब सॉल्यूशंस जो है आपके, सॉल्यूशंस डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब एक्शंस आपके डिफाइन होंगे। गॉट इट? चलिए। तो यहाँ तक के हमने चैप्टर 1 पार्ट 1 देखा। अभी नेक्स्ट इसमें हम केस स्टडीज देखेंगे। कौन से केस स्टडीज देखेंगे? ये वाले केस स्टडीज देखेंगे कि ये जो भी हमने अभी तक के देखा है। जैसे वहां पे लिखा था कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क मतलब क्या? जैसे एक ना पोर्तो रिको का रिस्क हो गया था। क्या रिस्क हो गया था? ये पोर्तो रिको ना, इट इज अ टेरिटरी ऑफ US, हाँ, तो वो बैंकरप्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लो पब्लिक फंड्स, हाँ। तो फिर क्या हुआ कि IMF केम इनटू पिक्चर और उन्होंने उसको बचाया। अब ये कैसे हो गया था कि ये जो पोर्तो रिको का फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो ये क्या हो गया कि मतलब एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन, राइट। और लोग ना इसको छोड़ छोड़ के चले जा रहे थे।
तो ये गवर्नमेंट के लिए इनसाइड मतलब कुछ रहा ही नहीं, राइट? एंड ये इट वाज बोरोइंग सो हेवीली टू कीप इटसेल्फ अफ्लोट फाइनेंशियली। तो एक जैसे मैंने बताया कि दे काइंड ऑफ फॉर वन डेट ओल्ड डेट और एक डेट लेते गए, उसकी कंपनीज मूव आउट ऑफ हो गई अदर टैक्स हेवंस में। तो इसकी वजह से पोर्टो रिको बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया, ओके। एंड दैट्स वाई धीरे धीरे ये जो वहाँ के लोकलाइट्स थे वो भी मूव होते गए टू द मेनलैंड। इसके वजह से क्या हुआ कि रेवेन्यू रिसोर्स एकदम ड्राई हो गए, एकदम ही नीचे आ गए, और डेट पाइल अप हो गए। इतना पाइल अप हो गया कि इवन इफ पोर्टो रिको के बॉन्ड्स जो है कि दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम फेडरल लोकल एंड स्टेट टैक्सेस, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उसका ग्रोथ रेट वो या उठाया नहीं गया। देखिए, ट्रबल टर्शरी उसको बोलते हैं कि इतना सारा उसने लोन उठा के ले लिया, एक लोन के लिए दूसरा, दूसरे लोन के लिए तीसरा, तीसरा लोन के लिए चौथा, बट देन वो काम ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका पर कैपिटा बेसिस भी कम होते गया, उसका पॉपुलेशन भी प्लंज्ड ओवर फ्यू डिकेड्स, मतलब कहीं और चले गए उसके लोकलाइट। तो ये डेट जो अमेरिकन सिटीजन्स के थे, या फिर ये म्यूचुअल फंड्स या हेज फंड्स रिस्पेक्टिवली ओन्ड बाय अमेरिकन सिटीजन्स थे, राइट? फिर क्या हुआ कि आईएमएफ को इंटरवीन करना पड़ा इन सब चीज़ों के इसमें, एंड देन उसने ये पोर्टो रिको को देखो वे आउट ऑफ क्राइसिस। तो द क्रूगर एंड दिस इज क्या है, द वॉल्फ रिपोर्ट रिटन बाय रंजीतीजा एंड एंड्रयू वोल्फ। तो इन्होंने प्रपोजल दिया कि ये पोर्टो रिको के कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है, ये क्या क्या करना है। फिजिकल रिफॉर्म हो गया, आपके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी हो गया। तो ये सब कुछ करके उन्होंने वो पोर्टो रिको को आईएमएफ के बेला मतलब आईएमएफ ने उसको बेल आउट किया। तो ये ऐसा इतना सादा हो सकता है कि जैसे उन्होंने बोला कि दिस हैज नॉट वर्क सो वेल फॉर मेक्सिको एंड other developing nation. It also brings to the force for it, if Puerto Rico must leave the US altogether or strike out on its own. In any event, austerity measures and uncertainty looms before Puerto Rico. Latest update क्या था कि US Treasury Secretary Jack Lew visited Puerto Rico and emphasized that it was paramount that the House of Representatives come up with a plan to help Puerto Rico and come out of this current debt crisis. Talks are underway on the prioritization of creditors whose bond payments are due. समझ में आया? मतलब बोलना ये चाहता था, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि इतने सारे एक डेट के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, कंपनीज मूव हो गए अदर टैक्स हेवंस में, उनके लोकलाइट्स मूव हो गए, तो क्या हो गया, रेवेन्यू सोर्स सब ड्राई हो गए, मतलब रेवेन्यू ही नहीं मिल रहा ना, रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। और ये पाइल अप होते जा रहा है डेट, जैसे जैसे पाइल अप होते जा रहा है। तो फिर आईएमएफ का बेल आउट उन्होंने किया। कैसे बेल आउट किया? रिफॉर्म्स डाले उन्होंने, अलग अलग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म डाला, फिजिकल रिफॉर्म डाला, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ाया। तो ऐसे करके उसको बेल आउट किया। सेम चीज बैंक्रप्सी हो गई ग्रीस। ग्रीस नाम की एक कंट्री है, 2008 से 2018 में ये बहुत बैंक्रप्ट हो गया। कैसे बैंक्रप्ट हो गया देखते हैं कि 2000 द ग्रीक डेट क्राइसिस इज अ डेंजरस अमाउंट ऑफ सोवरियन डेट ग्रीस ओन टू द यूरोपियन यूनियन, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, बिटवीन 2008 एंड 2018। तो 2008 में क्या हुआ कि जर्मनी एंड उसके बैंकर्स ने बहुत सारा पैसा लेंड कर दिया ग्रीस को, ओके। तो लेकिन 2010 में ग्रीस सेड दैट इट माइट डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट व्हिच वुड थ्रेटन द वायबिलिटी ऑफ द यूरोजोन। टू अवॉइड दिस यू ईयू लेंट इनफ, मतलब फिर से वही चीज, और एक उसको पैसा दिया गया, एक डेट चुकाने के लिए और एक डेट दिया गया, राइट, टू सस्टेन थ्रू। लेकिन 2017 में रिजल्ट क्या आए कि ग्रीस रैन अ बजट सरप्लस ऑफ 0.8% ओनली, economy grew 1.4%, unemployment sat at 22%, one third of Greece population lived below the poverty line, and GDP debt GDP ratio 182%, राइट? तो ये सब कुछ हो गया ग्रीस के साथ। सो इम्प्रूविंग हाउ ग्रीस, ये मेजर्स क्या क्या लिए कि रिफॉर्म कर दिए ग्रीस के पेंशन सिस्टम के लिए, मॉडर्नाइजेशन कर दिया फाइनेंशियल स्टैट्स एंड रिपोर्टिंग के लिए, एंड पब्लिक फाइनेंस कैसे इम्प्रूव किया गया, वो सब इन्होंने ये मेजर्स देखे, यूरोपियन यूनियन ने ये मेजर्स देखे कि ऑस्टेरिटी में, ऑस्टेरिटी मेजर, नॉट ऑस्ट्रिसिटी,
ऑस्टेरिटी मेजर्स ये यूरोजोन डेट क्राइसिस में कैसे बाहर आने के लिए उन्होंने किया, राइट। तो ये होता है कोई भी एक कंट्री का, जैसे मैंने ये पोर्टो रिको का आपको दिखाया कि पोर्टो रिको भी गया, वैसे ग्रीस गया, और कैसे हम लोग ये कंट्री रिस्क हो सकता है। अब चलते हैं आगे। बहुत सही, मेरा एकदम फेवरेट आपका एयर इंडिया। चलिए कौन सा लेते हैं, ये वाला, कोको कोला का केस लेते हैं। हाँ, अब ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया, रेपुटेशन एंड कंप्लायंस रिस्क। हाँ, तो प्रोडक्ट रिकॉल हो गया। अभी कोको कोला का क्या हो गया, 1990 में बेल्जियम में उन्होंने क्या किया, सॉरी हाँ ब्रसेल्स में, ऑफ कोर्स बेल्जियम में ही। तो ब्रसेल्स उसकी एक सिटी है, तो वो ब्रसेल्स में उन्होंने कुछ 33 बच्चे थे, एज बिटवीन 1 to 11 to 13। तो उन्होंने ये कोक कंज्यूम किया, और उसके इमीडिएटली बाद दे कंप्लेंट अबाउट हेडेक, डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस एंड नॉस्टैटिक फील हो रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, राइट। तो ये उन्होंने ध्यान में आया कि ये कोक उन्होंने कंज्यूम किया था, और उसके वजह से वो हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बवाल हो गया 1990 में। और फिर ये क्या, पहले ही 1990 में कोक उसके अनएथिकल बिहेवियर से, प्रोडक्ट सेफ्टी, या फिर एंटी कॉम्पिटिटिवनेस से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ्लिक्ट से, इंटिमिडेटिंग यूनियन वर्कर्स, पोल्यूशन, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड हेल्थ कंसर्न से पहले ही वो प्रॉब्लम में था। बट ऐसे होने के बाद ज़्यादा वो ये आ गया। तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ पता है आपको? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसको कोका कोला को उसके बेल्जियन के इसमें से सेकेंड क्वार्टर का नेट इनकम कमिंग डाउन बाय 21%, विच वाज 942 मिलियन। समझ में आ रहा है कि ये एक इंसिडेंस के वजह से 21% का उसका नेट इनकम रिड्यूस हो गया सेकेंड क्वार्टर का। एंड इट कॉस्ट अ बिग डेंट टू इट्स पॉकेट, लाइक 942 मिलियन, राइट। So moreover, the entire operation of removing and destroying recalled product cost Coca-Cola Enterprise another 1.103 million, like मतलब dollars उसको। The recall led to 5% decline in bottlers revenue and fail the cash operating profit by 6%। तो एक इंसिडेंस, ये 33 जो बच्चे थे वो बीमार हो गए, नौशेटिक हो गए, ये सारा होने के वजह से कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट हो गया। तो ये 942 मिलियन का उसको जुर्मान, आई मीन इट्स समथिंग दैट दे हैव टू पे। सिमिलर केस हो गया डैटसन गो कार का। कब हुआ, 2015 में हुआ। फॉल्टी फ्यूल सिस्टम है, तो उनको क्विड एंड डैटसन रेडी गो को वापस बुलाना पड़ा, रिकॉल करना पड़ा। अपनी मैगी, मम्मियाँ थक गई थी अपनी बोल बोल के कि मैगी मत खाओ, अच्छा नहीं है। बट हम है तो मैगी लवर्स है, राइट। और सितंबर 19 आ गया, जब वहाँ पे लोकली न्यूज़पेपर, मतलब एकदम सारे न्यूज़पेपर में आ गया कि मैगी को बैन कर दिया गया है, बिकॉज एक्सेस लीड एंड एमएसजी उसमें मिला है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको बोलते हैं एमएसजी, राइट। तो नेस्ले इंडिया की अपील थी 2015 के इसमें कि वो नहीं डालते हैं। बट India's food regulator had banned Maggi in 2015 after tests showed that it contained excessive lead and for alleged mislabeling over flavor enhancer MSG. So the product returned to the stores after account lifted the restrictions, and Nestle has since then removed the claim no added MSG. मतलब है MSG है उसमें, right? तो ये वापस मंगाया गया। तो ये मैगी का केस हुआ। तो 5 बिगेस्ट रिकॉल्स ऑफ अ कार, कौन से कार्स, जैसे मैंने बताया फोक्स वैगन, एक्सेस एमिशन ऑफ नाइट्रोजन। तो स्कोडा की जो कार्स थी वो वापस बुलाई गई, राइट। मारुति सुजुकी का क्या हुआ, फॉल्टी फ्यूल फिल्टर था 2014 में, मारुति सुजुकी के इसमें वापस हो गया। होंडा, फॉल्टी एयरबैग इन्फ्लेटर्स आ गए, वापस आ गया। 2016 में फोर्ड, फॉल्टी स्टीयरिंग एंड रेयर सस्पेंशन हो गया, राइट। तो कितना यूनिट वापस आ गया, देखो हैचबैक फीगो, फोर्ड फीगो एंड सिडान क्लासिक का 1,60,000 यूनिट्स रिकॉल करने पड़े। देखिए कितना है।
एंड जीएम जनरल मोटर्स 2013 में क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रेटजी एमिशन टेस्ट में वो फेल हो गए, मतलब उन्होंने ये गलत हो गया। तो ये सारे मतलब 1,14,000 यूनिट्स ऑफ टवेरा वापस बुलाए गए, राइट। तो ये है, अगर आप कंप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो दैट वाज योर कंप्लायंस रिस्क, रेपुटेशन एंड कंप्लायंस रिस्क, ओके। अब चलते हैं अपन डेटा हैक, आईटी रिस्क के रिलेटेड। आईटी रिस्क के रिलेटेड बहुत ज्यादा बवाल कब हुआ था पता है आपका? सबसे बड़ा बवाल ये कब हुआ था, जब फेसबुक का मार्क जकरबर्ग को बुलाया गया कि यार आपने डेटा मतलब जो प्राइवेसी है वो उसका आपने ये नहीं किया, राइट। तो ये मैंने नीचे ना आपका, यू विल गेट दिस वीडियो, आई हैव एडेड दिस वीडियो। यहाँ पे नहीं होगा शायद कहीं, नॉट श्योर इफ इट इज स्टिल देयर। नहीं, ठीक है, तो फिर मैं बताऊंगी व्हाट्सएप का, एक मैंने सेपरेट फेसबुक, ये हम देखेंगे। ये ना मार्क जकरबर्ग का आंसर द क्वेश्चंस एंड एड्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेशन, ये आप जाके देख लेना यूट्यूब पे। बहुत मेरा पर्सनल फेवरेट वीडियो है ये, कि कितने शांत तरीके से, कितना ऑर्गेनाइज, कितना सेंट्रल ऐसा ये रख के, विदाउट गेटिंग इनटू प्रेशर तो था ही, लेकिन कैसे अच्छे से उन्होंने आंसर किए रिगार्डिंग द डेटा लीकेज। अब ये क्या प्रॉब्लम है, डेटा लीकेज का क्या प्रॉब्लम हो गया? तो ना ये स्क्रैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब क्या होता है कि जैसे आपको, आप अगर इंस्टाग्राम पे मैं रिसेंटली आई हूँ, तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि दे आस्क यू कि आपके जो फेसबुक का जो भी डिटेल्स है मैं इंस्टाग्राम पे खींच लूँ क्या, राइट। तो ये खींचते वक्त, इंटरफेस करते वक्त स्क्रैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। और ये खुद उन्होंने ही ये किया है कि कब की बात है ये, 2020 अप्रैल 2021, अर्लियर दिस ईयर, personal information of over 533 million Facebook users from 106 countries had been leaked online, ठीक है। और ये कब हुआ, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी हुआ उनके साथ 2018 में। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्टैंडर्ड क्या था? कैम्ब्रिज एनालिटिका स्टैंडर्ड मतलब एनालिटिका का ये था कि ये यूके के जब क्या बोलते, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, या फिर उनके हम देखेंगे नीचे कि कैसे उनके पॉलिटिशियंस ने ये कैम्ब्रिज एनालिटिका का डेटा यूज़ करके उनके जो भी कैंपेन्स चलाने हैं, उनका जो भी ये करना है, तो वो कैसे हुआ देखो, कि ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म था, तो ये पॉलिटिकल व्यू लेके उन्होंने कैसे कैसे स्कैंडल किया वो हम देखेंगे आगे। तो पहले ही कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रॉब्लम था, और प्लस अब वो बोल रहे हैं कि 533 मिलियन फेसबुक का यूज़र का इंफॉर्मेशन लीक हुआ। कौन सा इंफॉर्मेशन? जैसे नाम, फेसबुक आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, ईमेल, ये इंफॉर्मेशन हैक हो गया। तो कैसे हैक हो गया? तो ये बोल रहे हैं कि इट रिलाइज ऑन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टू लिफ्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट while scrapping itself may not always be illegal. The manner in which the information was obtained in this case and later made available to online was a violation of Facebook's terms of services, right? तो ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी मिली कि जैसे मैंने बताया, देखो इंस्टाग्राम पे कि जब कांटेक्ट इंपोर्ट कर रहे थे तो वो अटैकर ने वहां से एक्सेस कर लिए फोन नंबर्स, एक्सेस नेम, इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड अकाउंट आईडी नंबर्स। तो ये बहुत ज़्यादा अ, बड़ा इशू हुआ था। और आप देखना कि ये पर्टिकुलर वीडियो में जो बोल रही हूँ कि वो देखना कि कितना अच्छे से वो उसको आंसर करते हैं। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका का क्या है कि ये एक ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म थी, राइट। तो ये क्या करती थी कि ये पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट करके यूज़ कर सकती थी कि वो देर एंड ये डेटा उन्होंने, दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ करके उन्होंने ये सारा डेटा, मतलब आपके प्रेफरेंसेस लेके रखे थे, राइट। तो ये केस में उनको बहुत बड़ा मतलब दे हैव टू पे, देखिए 500
के का फाइन टू द यूके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफिस, क्योंकि उन्होंने ये डेटा एक्सपोज कर दिया कि जो रिस्क था, राइट। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने चैप्टर 7 बैंक्रप्सी फाइल कर दिया उसके बाद में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, मतलब ये है आपके आईटी रिलेटेड रिस्क। तो ये आईटी रिलेटेड रिस्क या फिर मेजर डेटा इशू होता है, स्क्रैपिंग ऑफ होता है, तो ये रियल टाइम सिनारियो हुए थे। फिर और एक लेंगे एंड देन विल कॉल इट अ डे फॉर टुडे। तो डेटा हैक, जैसे डेटा हैक में और क्या क्या हो गया था, जैसे डब स्मैश, अंडर आर्मर, माई फिटनेस पैल। माई फिटनेस पैल में क्या था ना, आपके ईटिंग हैबिट्स, आपका एक्सरसाइज का रेजिमे, या फिर आप क्या क्या करते हो, आपका ईमेल एड्रेस, सारा डिटेल देना पड़ता है, आपका बर्थ, योर एज, आपका बर्थ डेट। तो ये सारे हैक हो गए अंडर आर्मर, मतलब माई फिटनेस पैल। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैक्ड 143.6 मिलियन। कब अनाउंस हुआ? मार्च 2018 में हुआ, ठीक है। हैश पासवर्ड भी गया। इक्विफैक्स, इक्विफैक्स के 147 मिलियन ये हुए। डब स्मैश, डब स्मैश का भी जो अपन ने यूटिलाइज किया डब स्मैश, तो 161.5 मिलियन डब स्मैश का डेटा हैक हो गया। और डीप प्रो रूट एनालिटिका, ये नहीं पता मुझे। जेंगा 218। उसके बाद मैरियट, मैरियट का 383 मिलियन, राइट। तो मैरियट होटल्स के इसमें नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट नंबर, ओवर 300 मिलियन पीपल who stayed at Starwood Hotel property were accessed in a major data hack, right? तो ये उनको बहुत ही लंबा वो चक्कर हो गया, राइट। Then there is a River City Media, 1.3 billion. They're talking about 1.37 billion, okay? बिलियन में बात चल रही है। याहू नंबर 1, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैक 3 बिलियन। कैन यू बीट दिस? 3 बिलियन लोगों के डेटा हैक हो चुके हैं। तो उसको कितना सारा पेनल्टी देना पड़ा, 117.5 मिलियन डॉलर्स का उसको लॉ सूट सेटल करना पड़ा। तो कितना ये फाइनेंशियल रिस्क तो हुआ ही हुआ आपका, प्लस आपका आईटी रिस्क भी हो गया, इजंट इट। तो ये सारे जो डिफरेंट केस स्टडीज है, ये भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ऐसे ये सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि क्या हुआ, रियल टाइम सिनारियो क्या था, फेसबुक क्या बोलना चाह रहा था, कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या बोलना चाह रहा था। ये न्यूज़ आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये इंटरव्यू, पर्टिकुलरली आई एम सेइंग इट अगेन, प्लीज़ गो एंड वॉच। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर 1 के इतने सारे, मतलब more than 50 case studies have been covered right here। और आप सोचिए 9 चैप्टर्स के कितने सारे केस स्टडीज हम कवर करेंगे। इतना कर लेंगे तो इट विल गिव यू इंस्टेंट कॉन्फिडेंस। अगर इतने केस स्टडीज हमने पढ़ लिए ना, तो अपना एक्यूमेन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। सो वी विल बी एबल टू राइट प्रॉपरली देयर, राइट। सो दैट्स दैट। तो हमने क्या क्या कवर किया मॉड्यूल 1 में, चैप्टर 1 में हमने क्या, चैप्टर 1 में पार्ट 1 में हमने टिल टिल व्हाट वी हैव कवर्ड। हमने देखा रिस्क के डिफरेंट डेफिनेशंस, रिस्क मतलब क्या, फटाफट एक बार कवर कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ रिस्क मतलब क्या, इवेंट एंड इम्पैक्ट, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। पॉजिटिव जैसे मैंने COP26 का एग्जांपल बोला। इंटरनल ऑडिट का गाइडलाइन क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अगर इम्पेड कर मतलब मीट नहीं कर पा रहे हो आप, तो उसको बोलते हैं रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, रिड्यूस द लाइक्लीहुड एंड डाउनसाइज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ टेंजिबल वैल्यू, है ना, टेंजिबल वैल्यू। ऑन हुम एंड ऑन व्हाट, ऑन हुम मतलब आपके एम्प्लॉयज, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, आपके ऑन व्हाट मतलब आपके गुडविल पे, आपके फाइनेंस पे, आपके इमोशंस पे, आपके हेल्थ पे, राइट। सो दैट्स दैट। रीजंस ऑफ रिस्क हमने देखे कि क्या क्या रीजंस ऑफ रिस्क है। ग्लोबल इवेंट्स, आपके इनोवेशन, स्टार्टअप डिस्ट्रप्शन, रोबोटिक्स, प्राइस वोलेटिलिटी, टेररिज्म, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स देखे हमने कि ब्लैक स्वॉन मतलब क्या, 9/11 का अटैक हो गया, मतलब वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर सच थिंग्स। आउटकम ऑफ रिस्क जैसे ऊपर बताया कि गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ टेंजिबल वैल्यू, द वर्ड इंपॉर्टेंट इज टेंजिबल वैल्यू। ऑन व्हाट, ऑन हेल्थ, सोशल स्टेटस, emotion, finance, goodwill, on whom, employees, customers, strategy, objective and profit, right? Risk perceptions, risk
फिर हमने ये भी देखा कि रिस्क परसेप्शन मतलब क्या, हमने ये भी देखा कि रिस्क कल्चर एंड एटीट्यूड मतलब क्या, कि रिस्क परसेप्शन मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किस किस वजह से हो सकता है, किस किस बारे में हो सकता है, ऑकरेंसेस, इम्पैक्ट एंड इफेक्ट एंड टाइम डिफरेंसेस हो सकते हैं, राइट। फिर से ऐसे 315 क्या बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब क्या, राइट। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब ऐसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है आपके इसमें कि जिसके वजह से ऑडिटर को एक स्पेशल ऑडिट रिमार्क वाला मतलब स्पेशल ऑडिट रिमार्क डालना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क। तो सिग्निफिकेंट रिस्क फिर वो बोलते हैं कि ऐसे 315 डिफाइंस बिजनेस रिस्क, क्या बिजनेस रिस्क, ऐसे कंडीशन इवेंट्स एक्शन एंड इनएक्शन ऑफ व्हाट मतलब विच प्रिवेंट हिंडर्स और फेल टू फर्दर ग्रोथ ऑफ क्या मतलब इम्पेयर्ड क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने को इम्पेयर करे, कौन सा ऑब्जेक्टिव, फास्टर बेटर प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट चेंजेस, राइट। फिर हमने देखे डिफरेंट डेफिनेशंस, आईफैक क्या बोल रहा है, कोबिट क्या बोल रहा है, पॉल हॉपकिंस क्या बोल रहे हैं, ऑक्सफोर्ड क्या बोल रहा है, सीमा क्या बोल रहा है, राइट, बाजिल क्या बोल रहा है। तो इसके हमने डेफिनेशंस देखे। फिर हमने देखा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब ऐसा रिस्क कि आपके कैश फ्लो इज नॉट एडिक्वेट फॉर मीटिंग योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसके एग्जांपल्स क्या थे, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए। इसके एग्जांपल्स थे कि आपका आरओआई लेस हो गया या फिर आपके प्रिंसिपल लॉस हो गया। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंस रिस्क हमने देखे, ये हम डिटेल में इसके हर चैप्टर 1 पार्ट 2 वाले सीरीज में हम देखेंगे। इसका डिटेल केस स्टडीज देखेंगे, मार्केट रिस्क मतलब क्या, क्रेडिट रिस्क मतलब क्या, ऑपरेशंस मतलब क्या, राइट। तो ये है फाइनेंशियल रिस्क। फिर ये ओ एच एस एस हमने देखा, इसका कोई इतना ये नहीं है। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी कॉर्पोरेट रिस्क। कॉर्पोरेट रिस्क मतलब डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट, क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकते हैं और वो डिपार्टमेंट के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकते हैं और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, राइट। तो वो 50 सोल्यूशंस तो वी विल कीप ऑन रीडिंग। प्लस हमने जो अभी 10-15 केस स्टडीज देखे, थोड़े से ही देखे, हमने देखा डेटा के रिलेटेड, हमने देखा कंट्री रिलेटेड, हमने और भी ऐसे रिस्क मतलब केस स्टडीज हमने देखने हैं जिसकी वजह से आपको और भी मतलब लिखने में आसानी होगी। जैसे कंप्लायंस रिस्क हमने देखा कि कंप्लायंस मतलब क्या, डैटसन गो को वापस बुलाया गया तो हैजार्ड हो गया किसका, गुडविल का, रेपुटेशन का, राइट। तो ये सारे केस स्टडीज और ये सारा हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छे से लिख पाएंगे। सो ऑन दैट नोट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये एक क्विक समरी आपको ध्यान में आ गई रहेगी। तो बेसिस ऑफ दैट कीप रीडिंग ऑफ दीज टॉप 50 बिजनेस रिस्क, जो मैं उसका अटैच करूँगी ये वीडियो के साथ, तो यू कैन कीप रीडिंग अबाउट दैट। केस स्टडीज़ डालती रहूँगी, केस स्टडीज़ हम जितने ज़्यादा अगेन एंड अगेन ये रिएट्रेशन हो रहा है कि केस स्टडीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब ये जितना भी कॉन्सेप्ट दिया है इसी यही कीवर्ड्स अगर आप आपके आंसर आंसर स्टेटमेंट में लिखते हो तो यू विल गेट अच्छे मार्क्स, राइट। इट इज़ लाइक वी आर राइटिंग अपना ऑडिट का पेपर, हमें आता सब है, प्रैक्टिकली सब पता है, बट चॉइसेस ऑफ वर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो चॉइसेस ऑफ वर्ड्स क्या है, ये चॉइसेस ऑफ वर्ड्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये यूटिलाइज करके हम चॉइसेस ऑफ वर्ड्स यूटिलाइज करके अच्छे सोल्यूशन स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। सो ऑन दैट नोट, thank you so much guys for watching this video. So that was chapter 1 part 1, detailed discussion about risk, different cases about risk, different real time cases for different departments and their problem statement and solution statement. I hope it gives you some clarity. And on that note, if you have any questions, if you have any concerns, or you are not clear, or you have any suggestions, please feel free to get in touch with me. There is address given below. Please feel free to write in there if I'm going too fast or too slow, or you need some more explanation about it. So I would be, I would be looking forward for your thoughtful comments on that, right? So जाते जाते खामोशी आप अब अभी समझ नहीं रहे और मेरे पास कोई अल्फाज बचे नहीं, है ना। ऑन दैट नोट आई विल से गुड बाय, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक्स।